ابھی میں نے تھانے میں قدم رکھا ہی تھا کہ میرے انچارج نے کہا، آؤ بھائی شجاع، بڑی شدت سے تمہارا انتظار ہو رہا تھا۔ میں چونک گیا اور پوچھا، خیریت ہے سر؟ انچارج رحمت خان نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، ارے آج کے دور میں خیریت کا بس فٹافٹ جائے وقوع پر پہنچ جاؤ، ہماری ناک کے نیچے قتل ہو گیا ہے، ابھی وہ کیمرے والے بوجھ سونگتے پہنچ جائیں گے اور پھر ٹی وی پر پٹی چل جائے گی کہ فلاں تھانے والے سوئے پڑے ہیں، قتل ہو گیا اور وہ پہنچے ہی نہیں۔ جان عذاب میں ڈال دیا ان چینل والوں نے۔ مجھے تھوڑا محسوس تو ہوا کہ صبح کی شروعات قتل کی حادثے سے ہو گئی ہے، لیکن بہرحال یہ میرا فرض تھا۔ میں نے اپنی میز سے چند ایک ضروری چیزیں اٹھائی اور ایک سپاہی کے ساتھ جائے وقوع کی طرف چل پڑا۔ بات انچال کی بھی ٹھیک ہی تھی، اگر کوئی رپورٹر وہاں پہنچ جاتا تو یقیناً اخبار اور ٹی وی والے ہمارا ناک میں دم کر دیتے۔ 5 منٹ میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ دور سے ہی لوگوں کا رش دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ اس جگہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ آنے والے سپاہی نے مجھے بتایا کہ فون کرنے والے نے اطلاع دی تھی کہ ایک بندے کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کا گلا دھڑ سے الگ ہے اور پیٹ بھی پھٹا ہوا ہے، جیسے اسے کسی درندے نے ہلاک کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو موقع دیکھ کر پتہ چلے گا کہ اصل بات کیا ہے اور باقی کا پوسٹ مارٹم رپورٹ سے معلوم ہو جائے گا۔ جیسے ہی ہم قریب پہنچے تو ایک آدمی تیزی سے ہجوم میں سے نکل کر ہمارے جانے پڑا۔ ہم دونوں اسے دیکھنے لگے۔ قریب آ کر اس نے کہا، سر جی میں نے تھانے میں فون کیا تھا، حمید میرا پڑوسی ہے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، صبح مجھے شو پالش کی ضرورت تھی، میں وہ لینے اس کے گھر آیا تو پتہ چلا کہ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے وہی سے تھانے فون کر دیا۔ وہ 30-32 سال کا ایک صحت مند شخص تھا جو بہت باتونی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ہمیں لاش کے پاس لے گیا۔ چھوٹی سی 2 کمروں پر مشتمل گھر کے ایک کمرے کے وسط میں لاش پڑی تھی۔ لاش کے کپڑے نہیں تھے، بس ایک انڈرویئر پہنا ہوا تھا۔ اس کے پھٹے ہوئے پیٹ میں سے باہر نکلی ہوئی انتڑیاں فرش پر پڑی تھیں اور چیونٹیوں کی ایک قطار ان تک پہنچ گئی تھی۔ لاش کی حالت واقعی مخدوش تھی، مگر یہ قیاس کرنا ممکن نہیں تھا کہ گنجان آباد اس علاقے میں میلوں دور سے کسی خونخوار جانور نے آ کر اس بندے کو ہلاک کیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے لاش کو چھوڑا اور کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کمرے کی کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی نہیں لگ رہی تھی، گویا یہ کوئی چوری ڈکیتی کا کیس نہیں تھا۔ دوسری چیز جو مجھے کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ لاش کے ارد گرد کہیں بھی خون موجود نہیں تھا، ورنہ جیسی حالت تھی لاش کی، اسے تو خون میں نطپت ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے میں وہاں کافی دیر تک موجود رہا۔ لاش اٹھوا کر ہسپتال پہنچا دی اور خود فارغ ہو کر اس کے گھر کی تلاشی لینے کا فیصلہ کر کے میں واپس تھانے آ گیا۔ سپاہیوں سے کہہ کر میں نے مکان کو سیل کروا دیا۔ بیانات کے مطابق قتل کا کوئی یعنی شاہد نہیں تھا۔ مقتول تنہا اس مکان میں رہتا تھا۔ 5 سال قبل اس کی شادی ہوئی تھی، مگر گھریلو ناچاکی کی وجہ سے بیوی روٹ کر میکے چلے گئی اور کچھ عرصہ بعد مر گئی۔ محلے داروں کے مطابق اس کا کوئی رشتہ دار کبھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا، بس چند ایک دفتری اور محلے کے دوست تھے، وہ کسی پر بھی اس کے قتل کا شبہ کرنے سے قاصر تھے۔ یہ کلجاوا کیس تھا۔ بہرحال مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار تھا۔ سارا دن دوسرے کئی کام نپٹاتے، کچہری کی بیشیاں بھگتاتے کب گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ قتل کے تفتیش کار مصروف رہتے ہیں، یہ وہی جان سکتا ہے جو اس شعبے سے وابستہ ہو۔ خیر تھانے سے گھر کو روانہ ہوتے ہوئے مجھے اس گھر کی تلاشی لینے کا خیال آیا۔ میں نے وقت دیکھا، سورج غروب ہونے میں چند ہی منٹ رہتے تھے، لیکن فرض تو فرض ہوتا ہے، میں وضاحت کرتا چلوں کہ میں ان پولیس والوں میں سے نہیں ہوں جو کام سے جی چراتے اور فارغ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ میں پیدل ہی وہاں پہنچ سکتا تھا، مگر اس خیال سے موٹر سائیکل ساتھ لی کہ وہاں سے مجھے گھر جانا تھا، جو کہ موٹر سائیکل کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو گلی تقریباً خالی تھی۔ میں نے پہرے پر کھڑے پولیس مین کو گھر کھولنے کو کہا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے مجھے عجیب سا اصرار محسوس ہو رہا تھا، مگر میں ان محسوسات کو کوئی نام نہ دے سکا اور اندر چلا گیا۔ میں نے تسلی سے دونوں کمروں کی تلاشی لی۔ ضروری ساز و سامان کے علاوہ اس کے گھر میں کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ حمید ایک نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، اس کے گھر میں اس سے زیادہ سامان ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس کی الماریوں سے لے کر
कपड़ों के संदूक और बेड के गद्दों से लेकर सोफे के नीचे तक झांक लिया, मगर मुझे कोई खास चीज़ नजर ना आई। वो शायद डायरी वगैरह लिखने का आदी भी नहीं था। वो एक मामूली तालीम याफ्ता शख्स था जो एक प्राइवेट इदारे में चपरासी की नौकरी कर रहा था। अपनी तलाशी में नाकाम होकर मैं कमरे के वस्त में खड़ा होकर सोचने लगा, इस अंधे कत्ल को मैं कैसे हल करूँगा। अचानक एक ख्याल मेरे ज़हन में कूदे की तरह लपका। मैं इसके बरामदा नुमा किचन में आ गया। इसकी तलाशी भी अच्छी तरह ली, मगर चीनी के डिब्बे में छुपाए गए 500 रुपयों के अलावा कोई चीज़ दस्तियाब ना हो सकी। मैंने रुपये वापस रख दिए। हैरान मत होइए, मैंने पहले ही बताया कि मैं एक फरजशनास और ईमानदार पुलिसमैन हूँ। किचन से मायूस होकर मैं वापस फिर इसी कमरे में आ गया। कुछ था जो मेरे जहन में चुभ रहा था, मगर मैं इसका इदराक करने से कासिर था। थक कर मैं सोफे पर बैठ गया और सरसरी सी नज़रों से कमरे का जायजा लेने लगा। सामने की दीवार पर एक हसीन औरत की तस्वीर लगी थी। मैं इसे देखने लगा। अपने अंदाज़ो इतवार से वो फिल्मी अदाकारा नहीं लग रही थी। मैंने सोचा था ये मकतूल की बीवी हो सकती थी। मैं बेध्यानी में तस्वीर को देख रहा था कि मुझे लगा लड़की ने पलकें झपकी हैं। मैं मुंह चौंक गया और गौर से तस्वीर को देखा। कोई गैर मामूली बात नहीं थी, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि अब लड़की की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था कि जब मैंने आगाज़ में इस तस्वीर को देखा था तो वो लड़की मुस्कुरा नहीं रही थी। मुझे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। शायद इस अजीब वाक़े की वजह से या वैसे ही थक कर मुझे प्यास लग गई थी। मैंने अपनी ज़हन से ऐसी वैसी तमाम बातों को झटक दिया और उठकर किचन में पानी पीने चला गया। वापस कमरे की तरफ आते हुए मैंने वक्त देखा तो पता चला कि रात के 10 बज रहे थे जब मैं यहाँ आया था। इस वक्त 7:20 हुए थे। गोया मुझे यहाँ आए 2.25 घंटे हो गए थे और मैं कुछ भी कारामद चीज़ दरियाफ्त नहीं कर सका था। कमरे में दाखिल होकर मैंने गैर इरादी तौर पर तस्वीर की तरफ देखा। मैं चौंक गया। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने देखा तस्वीर वाली लड़की रो रही थी और इसके शफाफ आंसू गालों पर टिके हुए थे। आंखों में वैसी हल्की सी सुर्खी भी थी जैसे कि अमूमन रोने से लड़कियों की आंखों में पैदा हो जाती है। मुझे खौफ तो महसूस हुआ, मगर मैंने खुद पर काबू पा लिया और कुछ लम्हे सोचने के बाद आगे बढ़कर तस्वीर उतार ली। उतारते हुए वो तस्वीर मेरे हाथों से फिसल गई और मेरे चेहरे पर आ गिरी। मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई, क्योंकि मुझे अपने गाल पर नरम निस्वानी लबों का लम्स महसूस हुआ था। मैं इसे अपना वहम करार नहीं दे सकता था। मैंने एक झटके से तस्वीर अपने चेहरे से दूर हटाई। लड़की की दराज नोकीली पलकों वाली आंखें बंद हो चुकी थी। मेरे हाथ कांपे और तस्वीर मेरे हाथ से छूट कर बेड पर जा गिरी। मैं हिरासा सा खड़ा इसे देखता रहा। मेरा ज़हन इन तमाम बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था और मैं इसको झुठला भी नहीं सकता था। तस्वीर को इसी तरह बेड पर पड़े छोड़कर मैं सोफे पर सर थाम कर बैठ गया। दफतन एक ख्याल के तहत मैं चौंक गया। मैंने उठकर खुद को अलमारी के आईने में देखा। मेरे गाल पर निस्वानी लबों का ठप्पा मौजूद था। मैंने बेयकीनी से पलट कर बेड पर पड़ी तस्वीर की तरफ देखा। लिपस्टिक का रंग भी वही था। मेरे ज़िंदगी में इस तरह के इत्तफाकात का ये पहला मौका था। मैं हवास बाख्ता हो गया। जल्दी से जेब से टिश्यू निकाल कर गाल साफ किया। मुझे अपना दिल कनपट्टियों में धड़कता हुआ महसूस हुआ। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। शायद मैं आपको बताना भूल गया कि मैं एक गैर शादीशुदा जवान मर्द था और इससे पहले औरत के नमस से वाकिफ नहीं था। शायद इसी वजह से मेरी हालत इतनी ख़राब हुई थी। कुछ देर बाद जब मेरे एहसान बहाल हुए तो मैंने इस तस्वीर को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। मैं देखना चाहता था कि इसे थोड़ी सरार तस्वीर में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से ये तस्वीर इस तरह तब्दील हुई थी। सुबह 9 बजे नाश्ता करके मैं थाने जाने के लिए तैयार था। जब इतलाई घंटी बजी, मैं हैरान होता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उमूमन इस वक्त कोई भी मुझसे मिलने नहीं आता था, क्योंकि मैं जल्दी की वजह से किसी की बात नहीं सुन सकता था। घर में मेरे अलावा मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा होती थी। छोटा भाई कॉलेज में पढ़ता था और सुबह घर से निकल जाता था। मैं ये सोचता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा के वालिद या वालदा में से किसी का मुलाकाती आया होगा, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर मुझे हैरत की इंतहा आ रही, क्योंकि दरवाजे पर सुर्ख गुलाबों की तरह एक गुलदस्ता पड़ा था और दूर नज़दीक की गली में कोई ज़ीरो मौजूद नहीं था। गुलाबों की खुशबू बहुत तेज़ थी। बहरहाल मैं इसे उठा कर घर ले आया।
वालदा देखकर हैरान हो गई, पूछने लगी, शुजा तुम्हें किसने फूल बेचे हैं? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी हालत बिल्कुल इस नौखेज आशिक की सी थी जिसके करतूत का इल्म इसके बाप को हो गया हो, लेकिन मैं एक तजर्बाकार पुलिसमैन था। फौरन बहाना करा, अम्मी एक फूलों की दुकान वाला दोस्त बन गया है, उसी ने बेचा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं मना कर दूंगा। वालदा फौरन बनी पगली, मैंने कौन सा एतराज़ किया है, पहली मरतबा ऐसा हुआ तो पूछ लिया। अरे हाँ याद आया, रात को तुम क्या टीवी चलका छोड़कर सो गए थे? तुम्हारे कमरे से किसी के गाने और घुंघरू बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं हक्का बका रह गया, मेरा ध्यान फौरन तस्वीर की तरफ गया, मगर तस्वीर तो लड़की के ऊपर ही धड़की थी जैसे पासपोर्ट की तस्वीर होती है, बस काफ़ी बड़ी थी। मैंने फौरन एक और बहाना करा, असल में देखते देखते सो गया तो ध्यान नहीं रहा। अम्मी मुतमईन होगी, मैं इन्हें क्या बताता कि रात को तो मैंने सिरे से टीवी ऑन किया ही नहीं था, मगर ज़्यादा अजनबी की बात ये थी कि मुझे कमरे में मौजूद होने के बावजूद कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। ये हैरानी की बात इसलिए थी कि मैं बहुत होशियार नींद सोता था, ज़रा से खटके से मेरी आँख खुल जाती थी। मेरे पास इस सारी सूरत हाल का कोई जवाब नहीं था। एक मरतबा तो मेरे दिल में आई कि इस तस्वीर को उठा कर कहीं बाहर फेंकाऊँ, लेकिन फिर मैंने खुद अपने इस ख्याल को छटक दिया। मुझे थाने जाने में देर हो रही थी। एक मरतबा तो मेरे दिल में आई कि इस तस्वीर को उठा कर कहीं बाहर फेंकाऊँ, लेकिन फिर मैंने खुद अपने आप से अपने ख्याल को छटक दिया। मुझे थाने जाने में देर हो रही थी। मैंने लपक कर टेबल पर से चाबियां उठाई। इसी वक्त मेरी नज़र गुलाबों के गुलदस्ते पर पड़ी। एक और हैरत मेरी मुंतज़िर थी। फूलों के ऊपर एक दरमियाने साइज की स्याह चमगादड़ चिपकी हुई थी और अपना मुंह खोल कर इसे इधर उधर हरकत दे रही थी। इसकी जुबान का रंग गैर मामूली सुर्ख था। चंद लम्हे सर इधर उधर घुमाने के बाद इसने अपनी जुबान से गुलाबों को चाटना शुरू कर दिया। तब मैंने गौर से देखा तो मुझे मालूम हुआ कि गुलाबों के ऊपर सुर्ख रंग के कुछ कीड़े किलबिला रहे थे और वो चमगादड़ इन्हें खा रही थी। ये मंजर देख कर मुझे उबकाई सी आ गई। मैंने होस्टर से अपना सर्विस रिवॉल्वर खींच लिया और मैं इस चमगादड़ का करह वजूद अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने रिवॉल्वर सीधा किया ही था कि चमगादड़ चश्मे ज़दन में मुझ पर हमलावर होगी। इसके खुले मुंह से नुकीले दांत झांक रहे थे। वो सीधी मेरे मुंह पर चिपटी थी। मैंने बरतरफ्तारी से दाईं सिमत झुक कर इसका वार बचाया। चमगादड़ आगे निकल गई। मैं तेजी से पलटा था कि इसके दूसरे हमले से पहले इसे निशाना बना लूं, मगर वो मुझे दिखाई ही नहीं थी। मैंने कमरे को अच्छी तरह खंगाला, मगर वो चमगादड़ गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गई। मैं गुस्से से गुलदस्ता की तरफ मुड़ा। अब इस पर कोई कीड़ा दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं चला गया था। गुलदस्ता समेत घर से निकल आया। रास्ते में एक जगह कूड़े के ढेर पर गुलदस्ता फेंक कर थाने चला गया। दिन भर बाकी काम निपटाता रहा। लंच के बाद मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ था। लाश का खून पहले ही निकाल लिया गया था। इसके अलावा इसका दिल और कलेजा भी गायब था। अब तक के हालात साबित कर रहे थे कि इस आदमी के कत्ल में कोई इंसान नहीं बल्कि कोई हवाई चीज़ मुलव्वस थी, लेकिन मैं ये बात थाने की रिपोर्ट में नहीं लिख सकता था। इसके साथ ही मेरी तवज्जो अपने साथ होने वाले गैर मामूली वाक़यात की तरफ चली गई। मैंने अंदाज़ा कायम करने की कोशिश की कि इस आदमी के कत्ल में इस तस्वीर का किसी न किसी तरह ताल्लुक ज़रूर था, लेकिन यह साबित करने के लिए मुझे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। मकतूल के घर से किसी और के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले थे जो मेरे किसी काम आ सकते। अब मैं बिल्कुल अंधेरे में टॉमिक टोइयाँ मार रहा था। मैंने बिस्तर पर लेट कर अपना सेल फोन ऑन कर लिया और दिन भर की कॉल्स वगैरह चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद इस काम से फारिग होकर मैंने सामने दीवार की तरफ देखा। तस्वीर पर लड़की नॉर्मल अंदाज से मेरी तरफ देख रही थी। मैं ये नोट कर रहा था कि जब से मैं इसे अपने घर में लाया था तस्वीर ने कोई रंग नहीं बदला था। पिछले 5-6 दिनों से मैं हर रोज़ देर तक इसका मुशाहिदा करता रहता था। अगरचे तस्वीर में कोई तब्दीली नहीं हुई थी, ताहम इस गुलदस्ता ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं इसे कई मरतबा मुख्तलिफ जगहों पर फेंक कर आ चुका था, मगर हर सुबह वो इसी तरह मेरी मेज़ पर पड़ा होता था जिस तरह मैंने पहले दिन वसूल करने के बाद रखा था। मैंने गर्दन घुमाकर मेज़ की तरफ देखा। इस पर गुलदस्ता मौजूद था। गुलदस्ते को देखते हुए मुझे वो चमगादड़ याद आ गई। पहले दिन के बाद से वो चमगादड़ दोबारा दिखाई नहीं दी थी।
बाकी तो सब कुछ तकरीबन नॉर्मल ही था। बस वालदा रोज़ाना शिकायत करती कि चीज़ें अपनी जगह से इधर उधर हो जाती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जो पालतू बिल्ली थी वो कई दिनों से अचानक कहीं चली गई थी। फिर वालद साहब ने भी शिकायत की कि घर में अजीब सी नागवार सी बू आने लगी है। किसी वक्त शिद्दत इख्तियार कर लेती है और किसी वक्त बिल्कुल मादूम हो जाती है। मैंने इन सब बातों को सुना ज़रूर, मगर कोई नोटिस नहीं लिया, क्योंकि अब तक के हालात से आगाही तो मुझे हो ही गई थी कि सारा मामला जिन्नात या भूत प्रेत से मुतल्लिक था। ऐसे में इस तरह की बातों का पेश आना कोई गैर मामूली बात तो ना थी। बस मुकाम में शुक्रिया था कि अब तक किसी किस्म का माली या जानी नुकसान नहीं हुआ था। सोने से कबल मैंने फैसला किया कि मैं कल एक मरतबा फिर मकतूल के घर का चक्कर लगाऊंगा। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ मेरी नज़रों में आने से रह गई हो, इस तस्वीर और फूलों के गुलदस्ते का राज खोल दे। कमरे की हर चीज़ पर गत की हल्की सी तय बता रही थी कि ये कमरा बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। मैंने कमरे के वस्त में खड़े होकर इधर उधर देखा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में मेरे अलावा भी कोई जानदार मौजूद हो। मैंने पिस्तौल पर गिरफ्त मजबूत की और चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। ये गैर इरादी हरकत थी, वरना इतना शऊर तो बहरहाल मैं भी रखता था कि जिन भूत गोलियों से नहीं मरते। मुझे अपनी पुष्ट पर रेशमी लिबास की सरसराहट महसूस हुई। मैं तेजी से पलटा, वहाँ कुछ भी तो नहीं था। चंद लम्हों बाद मेरी गर्दन पर से किसी की गर्म सांसें टकराई। मुझे एतराफ़ है कि बहुत मजबूत आसाब का मालिक होने के बावजूद मेरे माथे पर खौफ से पसीना आ गया। दुश्मन सामने मौजूद हो तो बंदा इससे मुकाबले की फिक्र करता है, लेकिन आदीदा दुश्मन से इंसान खौफजदा होने की सिवा कुछ नहीं कर सकता। सो मैं भी खौफजदा हो गया। मेरा दिल चाहा कि मैं भाग कर कमरे से बाहर निकल जाऊं, मगर मैंने अपनी कुव्वत इरादी से काम लेकर अपनी इस ख्वाहिश पर काबू पा लिया। इसी दौरान मेरी नज़र इस जगह पर पड़ी जहाँ से मैं तस्वीर उतार कर अपने साथ ले गया था। वहाँ एक हुक नज़र आ रहा था। मैं बेख्याली में इसे देखने लगा, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि हुक सिर्फ टांकने को नहीं लगाया गया था, बल्कि इसका कोई और मुसर्रफ भी था। मैं इसके करीब चला गया। हुक लोहे का था। मैं कुर्सी नीचे रख कर ऊपर चढ़ गया। हुक को इधर उधर हरकत देकर देखा। बज़ाहिर ये एक बेईमानी हरकत थी, मगर इसका नतीजा खातिर ख्वाब बरामद हुआ। कमरे के एक कोने में एक छोटा सा ढक्कन ऊपर उठ गया था। मैं छलांग लगाकर कुर्सी से उतरा और भागकर इस उठी हुई जगह पर पहुंच गया। वहां से नीचे जाता लकड़ी का सीना साफ नजर आ रहा था। तहखाना बना हुआ था नीचे। बिना सोचे समझे मैं तहखाने में उतर गया। मोबाइल की छोटी टार्च जलाकर मैंने गिरदोपेश को जायजा लिया। वो एक तंग सा कमरा था जिसके एक तरफ एक दायरा बना हुआ था। इसमें ऐसी चीज़ें पड़ी थी जैसी अमूमन जादूगरों के पास होती हैं। एक इंसानी खोपड़ी और हड्डियां भी पड़ी थी, जैसी मौत का निशान नाम बनाते हुए दिखाई जाती हैं। मुझ पर यह हकीकत पहली बार आश्कार हुई थी। मकतूल का जादू का रस्मी ताल्लुक था और वो अपने इस मकसद के लिए इस खुफिया तहखाने का इस्तेमाल करता था। मैंने तहखाना की अच्छी तरह तलाशी ली, मगर कुछ और हासिल ना हो सका। अब वहाँ रुकना बेकार। चनाजी मैं वापस आ गया। रात का खाना खाकर हम सब घर वाले कुछ देर एक दूसरे के साथ गपशप करते रहे। फिर मैं उठ गया। मुझे एक केस की फाइल का मुतालिया करना था। चनाचे मैं कमरे में आ गया। मेज़ पर से फाइल उठाते हुए मेरी नज़र इस मनहूस गुलदस्ता पर पड़ गई। गुलदस्ता के फूलों में से ताज़ा खून टपक रहा था, मगर मैं बेबसी से ही इसे देख रहा था। मेरी हर तरह की कोशिश के बावजूद गुलदस्ता इसी तरह मेरी मेज़ पर मौजूद था। वो खुद ब खुद वापिस आ जाता था। मेरा मूड खराब हो चुका था। खून टपकने के मंजर ने मुझे खौफजदा करने की बजाय मुझे नाराज़ कर दिया था। मैं बेड पर बैठ गया। लड़की की तस्वीर मेरे सामने थी। मैंने देखा लड़की मुस्कुराई थी। इस घर में आने के बाद ये पहली मर्तबा हुआ था। मैं एकदम खड़ा हो गया। मेरे मुंह से निकल गया, क्या मुसीबत हो तुम। अगले इलमे मैं अपनी जगह से उछल पड़ा, क्योंकि तस्वीर वाली लड़की ना सिर्फ गजबनाक नजर आने वाली लगी थी, बल्कि इसके खूबसूरत लब हिले। मैं अगर मुसीबत थी तो मुझे हमीद के घर से क्यों लाए थे। वहीं छोड़ाओ। एक तस्वीर को बातें करते हुए देखकर मैं हैरान रह गया। लड़की मेरी हालत देखकर मुस्कुराई। अगरचे बहुत गैर मामूली बात थी, मगर मैंने जल्द ही अपनी हालत पर काबू पा लिया। मुझे अचानक ख्याल आया कि ये लड़की कत्ल का मुआमा हल कर सकती है। मैंने तेजी से पूछा, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी। तस्वीर के होंठ हिले और कमरे में एक मुतरम्मम
नस्वानी आवाज उभरी। बिल्कुल करो बातें, हमीद भी तो करता था। मैंने इसकी बात को नजरअंदाज करके जल्दी से अपने दिमाग में कलबलाता हुआ सबसे पहला सवाल दाग दिया। तुम असल में कौन हो और बातें कैसे करती हो? हमीद को किसने और कैसे कत्ल किया? तस्वीर खिलखिला कर हंसी, फिर बोली, मैं वहां से शुरू करती हूँ जब मेरी हमीद से शादी हुई। मुझे तो तुम देख ही चुकी हो, हमीद को भी देख लिया होगा। मेरा और इसका कोई जोड़ नहीं था, मगर मेरी माँ पर हमीद के बाप ने बहुत एहसान किए थे और बेवगी के बाद इसका बहुत ख्याल रखा था। माँ ने हमीद के बाप की बात ना टाली और मेरी शादी से इससे कर दी। वो मुझे यहाँ ले आया, मगर मैं इसके साथ निभा नहीं कर पा रही थी। इसकी मामूली सी शख्सियत मुझे अपने सामने ही महसूस होती थी। इस घर में झगड़ा रहने लगा। मैं रूठ कर मैके चली गई। हमीद ने मनाने की कोशिश की, मगर बात न बन सकी। हमीद ने मुझे मनाने के लिए जादू टूने का सहारा लिया। मैं खुदा की मर्जी से अचानक बीमार होकर मर गई तो हमीद ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका। उसने एक आमिर से जादू सीख कर एक लंबा चिला काटा। इस तरह मैं फिर से इस दुनिया में आने के काबिज हो गई, मगर एक रूह की सूरत में। हमीद ने अपने जादू के जरिए मुझे अपना पाबंद बना लिया और मैं महीने में एक रात इसके साथ रहने लगी। वो मुझसे बातें करता, अगरचे मुझे इसकी सच्ची मोहब्बत पर यकीन आ गया था, मगर इस तरह पाबंद होना नहीं चाहती थी और मैं इस वक्त तक आज़ाद नहीं हो सकती थी जब तक कि इस तस्वीर को अमावस की रात जला ना दिया जाए। मगर ऐसा कौन करेगा? इतना बोल कर वो अफसरदा सी हो गई। मुझे भी अफसोस हुआ, मगर इस बात पर कि मैं पिछले महीने इससे बातें क्यों ना कर सका, वरना अब तक तो ये मामला हल हो सकता था। मैंने फिर कहा, लेकिन मेरे बाकी सवालों का जवाब अभी बाकी है। वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम हमीद के कत्ल का शक मुझ पर कर रही हो, मगर मैं बता दूं कि मैंने इसे कत्ल नहीं किया। ना मेरे पास इतनी ताकत है। इसे स्टूडेंट ने कत्ल किया है जिसे तुम चमगादड़ के रूप में अपने कमरे में देख चुके हो। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ से क्यों आई है, मगर हमीद को भी इसी तरह गुलाबों का गुलदस्ता मिला था और भी चांद की 3 तारीख को स्टूडेंट ने पहले इसका खून पिया, फिर दिल और कलेजा निकाल कर खा गई। होशियार हो जाओ, आज शायद तुम्हारी बारी है, क्योंकि आज भी चांद की 3 तारीख है। इन इंकशाफात ने मेरी अकल सलब कर दी थी। मैंने कैलेंडर की तरफ देखा, वाकई आज चांद की 3 तारीख थी। मैं गुम की कैफियत में खामोश खड़ा था कि बाहर से कमरे के दरवाजे पर जबरदस्त धचका लगा। मैं चौंक गया। तस्वीर के लब तेजी से हिले। वो चिल्लाई, होश में आओ, कुछ करो, वो आ गई है। अगर तुमने हिम्मत का मुजाहिरा ना किया तो वो तुम्हें मार डालेगी। इसके अल्फाज ने मेरे अंदर गोया बिजलियां भरती। मैंने लपक कर अपना रिवॉल्वर अलमारी से निकाल लिया। इसके साथ एक खंजर और लाइटर पड़ा था। मैंने इन्हें भी उठा लिया। एक चुड़ैल से मुकाबला करने के जाने मुझे किस हथियार की जरूरत पड़ सकती थी। अभी मैं पलटा ही था कि मुझे साथ वाले कमरे से अपने भाई की दिलदोज चीखों की आवाज़ सुनाई दी। एक लम्हा से भी कम वक्त में मुझे पता चल गया कि चुड़ैल ने मेरे बजाय मेरे भाई को मार डालने का फैसला किया है। मेरे अंदर आग भड़क उठी और मैं तमाम डर खौफ भूल गया। अपना छोटा भाई मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज था। मैंने दरवाज़ा खोलकर 1 मिनट में भाई के कमरे में पहुंच गया। इसके कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने देखा कि एक बहुत जिस्म चिंगादड़ मेरे भाई के जिस्म से लिपटी हुई है। इसका जिस्म इतना बड़ा था कि मेरा भाई इसके नीचे छुप गया था। वो मेरे भाई का खून पी रही थी। इसके दांत मेरे भाई की शारग में पेवस्त थे। मैंने फौरन इसे रुख से गोली मारी कि वो मेरे भाई को जख्मी न कर सके। चमगादड़ के जिस्म ने झटका तो खाया, मगर इसने मेरे भाई को ना छोड़ा। जिस जगह इसे गोली लगी थी वहां से अब चमगादड़ का काला स्याह खून उबल कर बाहर गिर रहा था। भाई की चीखें और फायर की आवाज़ सुनकर मेरे वालिदैन भी भागे भागे आ गए थे। इस चमगादड़ को अपने बेटे का खून पीते देख कर मेरी वालदा तो बेहोश हो गई और मेरे वालिद वैसे ही खड़े रह गए। मगर मेरे पास इन्हें देखने का वक्त नहीं था। मुझे हर कीमत पर अपने भाई को मरने से बचाना था। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मैंने तेजी से 2-3 फायर और दाग दिए। चमगादड़ ने मेरे भाई को छोड़ दिया, मगर वो साकित पड़ा था। मैं सदमे से पागल हो गया। मेरे वालिद भी बेहोश होकर गिर। मैंने धाड़ कर कहा, तुमने मेरे भाई को मार कर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें एक इब्बतनाक मौत मारूंगा। इसके साथ ही मैंने ट्रिगर दबा दिया। सारा चैम्बर इस पर खाली करके मैंने रिवॉल्वर भी इसे दे मारे। वो अजीब सी करह आवाज़ निकालती हुई जमीन पर पड़ी थी। फिर एक दम सीधी हुई। इसके अंदाज में मैं समझ गया कि वो मुझ पर हमलावर होने वाली है। हैरत की बात ये थी कि इसे 3 गोलियां लगने के बावजूद कुछ नहीं हुआ था। बाइस इसके गनीज बदन से श्याम हाथ निकल कर
فرش پر پھیل رہا تھا۔ کمرے میں ایک انتہائی ناگوار بدبو پھیل چکی تھی۔ چمگادڑ نے اپنے پر پھیلائے اور مجھ پر چپٹی۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ میں چکائی دے کر اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تیزی سے خنجر کھینچا مگر لائٹر بھی ساتھ ہی لے لیا۔ جیسے وہ میرے قریب آئی میں نے خنجر کا بھرپور اس کے گردن پر وار کیا۔ خنجر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا تھا۔ وہ ایک کریک چیخ مار کر پلٹ گئی۔ 1 منٹ تک فضا میں معلق رہنے کے بعد وہ پھر سے منہور ہوئی۔ خنجر میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور میں خالی ہاتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لائٹر جلا لیا اور ایک رومال کو آگ لگا دی۔ جب وہ اپنا بڑا سا منہ کھولے میرے قریب آئی میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر جلتا ہوا رومال اس کے باہر جیسے کھلے ہوئے منہ میں اچھال دیا اور خود چھلانگ لگا کر کمرے سے باہر جا کے چمگادڑ ماچریل بھی میرے پیچھے ہی تھی۔ وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کرے گی مگر وہ منحوس آوازیں نکالتی ہوئی مجھ سے کچھ فاصلے پر سین میں گر گئی۔ اس کا منہ میری طرف تھا۔ تب پہلی مرتبہ مجھے اس کا جلتا ہوا منہ نظر آیا۔ رومال کے شعلے سے اسے آگ لگاتی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا جسم آگ پکڑ چکا تھا۔ کچھ دیر تک ذہن میں اس کی خوفناک چیخیں گونجتی رہیں، پھر خاموش ہو گئی۔ اب وہاں راکھ کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور بھاگ کر کمرے میں گیا۔ اپنے والدین کو بے ہوش ہوتے میں دیکھ چکا تھا، اس لیے سیدھا اپنے بھائی کے پاس گیا۔ میں نے اسے ٹٹول کر دیکھا۔ ابھی تو دیر نہیں ہوئی تھی، اس کے دل کی دھڑکن بحال تھی۔ میں نے بھاگ کر موبائل اٹھایا اور ایمبولینس کو کال کر دی اور اپنے 3 پیاروں کو لے کر اسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹروں کی سرتوڑ کوششوں سے میرے بھائی کی جان بچا لی گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں پھر سے جی اٹھا ہوں۔ اچھا خدا حافظ، میں تمہیں افسردہ نہیں دے سکتا، اگرچہ تم سے بہت انس ہو گیا ہے مگر تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ آج اماوس کی رات ہے، میں تمہیں حمید کی قید سے رہائی دلا دوں گا۔ میری بات سن کر تصویر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ صرف چاند کی 3 تاریخ کو ہی بول سکتی تھی۔ میں نے افسردہ نظروں سے اس حسین تصویر کو دیکھا اور پھر اسے لے کر کچن میں چلا گیا۔ میں نے چولہا جلایا اور تصویر کو شعلوں پر رکھ دیا۔ تصویر دھڑا دھڑ چلنے لگی، میرے ارد گرد سسکیاں پڑنے لگی۔ میں پرنم آنکھوں سے جلتی تصویر کی راکھ میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھتا رہا۔ ابھی مجھے امید کے قدر کی فائل کو بھی داخلے دفتر کرنا تھا کیونکہ جن واقعات کا مجھے علم ہوا تھا وہ قانون انہیں تسلیم نہیں کرتا اور مجھے یہ معمہ حل کر لینے کے باوجود بھی اسے اپنی ناکامی کے ساتھ داخلے دفتر کرنا تھا۔ میں تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے سے لوٹ آیا۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی ہے؟ امید ہے بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور جانے سے پہلے ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور ساتھ میں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اسے بھی پریس کیا کریں آل پر، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی سے پہنچ سکے۔ تو جانے سے پہلے سبسکرائب کر کے جائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا اور ساتھ میں پیارا سا کمنٹ بھی کیجیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، کیسی کہانیاں آپ کو اچھی لگتی ہیں، زیادہ واقعات والی اچھی لگتی ہیں یا پھر کہانی نما۔ تو مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔